Hello, I'm audible and the screen is visible to everyone. Hello, I'm audible and the screen is visible to everyone. Okay, so now we'll start with this session. In last lecture we have started, in last few lectures we have started with Unit 3. In Unit 3 we have completed about the collections framework in Java, and the second part we have completed about the different types of anonymous class or different types of inner class available in the Java. Okay, and in last lecture we have started with the AWT part. We have seen AWT theory part, means what is meant by AWT and AWT hierarchy. After we have seen different types of classes and interfaces for performing different event and for performing different listener for that event. Okay, so now we'll move to the next topic, is about how to create different types of components in Java. So the first component is about Java AWT button. So now we'll see how to create this AWT button. Okay, so see, the button class is used to create a label button that has platform independent implementation. मतलब आप लोग जो है इस AWT बटन को क्या कर सकते हो, कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ऐसे नहीं है कि आपका बटन जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही क्रिएट होगा. सेकेंड, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका बटन क्रिएट नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं है. आप लोग आपके बटन को क्या कर सकते हो, कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, that's why it's saying the button class is used to create a label button. Label button मतलब जब आप लोग बटन को क्रिएट करते हो, at that time you are printing something on the button so that they can identify why we are creating that button. तो वहां पर लेबल बटन क्या शो करेगा कि आप लोग बटन के ऊपर क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सम लेबल प्रोवाइड कर रहे हो. क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि हम लोग क्या कर सके, उस बटन को आइडेंटिफाई कर सके. That's why it's saying the button class is used to create a label button that has platform independent implementation. The application result in some action when the button is pushed. For example, जैसे हम लोग जब बटन को क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने HTML के अंदर भी बटन को क्लिक किया था, तो जब बटन को हम लोग क्लिक कर रहे थे, on that time we are performing some action on that button. For example, on click, तो जब भी बटन क्लिक होगा, at that time we are calling some function for executing some code. Same we are performing in Java too. We are creating some button with some label, and whenever that button is pushed, at that time we will perform some action, we will call some method, or we will call some function. Okay, now how to create button declaration of the button class. AWT button class declaration, the public class button extend component. क्योंकि ये क्या है, आपका कंपोनेंट क्लास है ना. फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपके कंपोनेंट क्लास का जो है एक पार्ट है, क्योंकि कंपोनेंट क्लास से हम लोग क्या करें, बाकी सारे कंपोनेंट को फेच कर रहे हैं फ्रॉम दैट कंपोनेंट क्लास. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, क्लास को, जब बटन क्लास को हम लोग क्रिएट कर एक्सटेंड कर रहे हैं कंपोनेंट को, क्योंकि आपका बटन है वो कहाँ पे प्रोवाइडेड है, कंपोनेंट क्लास के अंदर प्रोवाइडेड है. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट्स एक्सेसिबल. एक्सेसिबल मतलब बटन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं से भी इजीली एक्सेस कर सके. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है. किसको इम्प्लीमेंट किया, एक्सेसिबल इंटरफेस को, ताकि आप लोग क्या कर सको, इस बटन को कहीं से भी एक्सेस कर सको. कहीं से भी एक्सेस कर सको इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी बटन के ऊपर कोई ना कोई इवेंट आप लोग परफॉर्म करोगे, एट दैट टाइम सम फंक्शन विल बी कॉल्ड. तो वहां पे जब बटन के ऊपर कोई ना कोई इवेंट आप लोग परफॉर्म करें, तो जब फंक्शन कॉल होगा, जब मेथड कॉल होगा, मतलब हम लोग उस बटन को कॉल कर रहे हैं, उस बटन के ऊपर इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बटन को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, तभी उसके ऊपर हम लोग इवेंट्स को अप्लाई कर पाएंगे. That's why we are using here implements accessible. Okay. So here we have created one button, public class button, extend किया है component class for implement के accessible interface को, so that we can easily access this button from any part of our class. So the theory part and this declaration part is clear about the button. Yes, everyone. This theory part and this declaration part is clear about the button. No. Okay.
ठीक है। सी यहाँ पे देखो, द बटन क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ लेबल बटन। जैसे हम लोग HTML के अंदर बटन्स को क्रिएट करते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू बटन करके, वैसे यहाँ पर जो है जावा के अंदर जब आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है, जब आपको GUI एप्लीकेशंस को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर लेबल की क्लास अवेलेबल है, यहाँ पर बटन की क्लास अवेलेबल है, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड की क्लास अवेलेबल है, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया की क्लास अवेलेबल है, यहाँ पर रेडियो बटन की क्लास अवेलेबल है, यहाँ पर चेकबॉक्स की क्लास अवेलेबल है। HTML में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, इनपुट टाइप इक्वल टू whatever component we want to create, we are using that component name. In the same way, in Java we have different types of classes. जैसे integer का एक class available है, float का एक class available है, different data types के classes available है, वैसे ही यहाँ पर different component के classes भी क्या है available है. With the use of this component class, we can create our button. Today only, I will send that PDF today only. Okay. So the button class is used to create a label button that has platform independent implementation. तो अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, बटन को क्रिएट करना है, एक लेबल बटन को क्रिएट करना है जो क्या करेगा, सब शो करेगा ना, सम टेक्स्ट को शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा बटन रहता है ऑन क्लिक करके, तो बटन के ऊपर टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए ऑन क्लिक करके. तो बटन के ऊपर टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए ऑन क्लिक हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे. That's why it's saying the button class is used to create a label button. Label button मतलब उस बटन के ऊपर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ शो होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, इजीली जो है चीजों को परफॉर्म कर सके, मतलब इजीली आइडेंटिफाई कर सके ना बटन किसके लिए यूज हो रहा है. सिंपली बटन को क्रिएट कर दिया, बटन के ऊपर कुछ टेक्स्ट ही नहीं है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा बटन का मेन बेनिफिट पार्ट क्या है, बटन किसके लिए यूज हो रहा है. तो बटन को आइडेंटिफाई करने के लिए बटन के ऊपर कुछ टेक्स्ट भी तो होना चाहिए ना, बटन के ऊपर कुछ लेबल भी तो होना चाहिए. That's why it's saying the button class is used to create a label button. मतलब बटन के ऊपर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ लेबल क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए. That has platform independent implementation. Platform independent implementation in the sense, जब आप लोग AWT कंपोनेंट को यूज करो तो ऐसे नहीं है कि AWT को आप लोग सिर्फ विंडोज 7 में ही यूज कर सकते हो या फिर विंडोज 10 में ही यूज कर सकते हो. आप लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या कर सकते हो, AWT कंपोनेंट को डिस्प्ले कर सकते हो. तो बटन भी क्या है, एक पार्ट है आपका AWT कंपोनेंट का. तो ये बटन भी क्या है आपका, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब इस बटन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हैं. That's why it's saying the button class is used to create a label button, a button which will display some text for identification that has platform independent implementation. मतलब the button is not dependent on any platform. The application result in some action when the button is pushed. जब भी आप लोग बटन को पुश करोगे, at that time some action will be performed. तो जो एक्शन परफॉर्म होगा वो क्या रहेगा, मतलब जब भी आप लोग बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्शन राइट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें करते थे ऑन क्लिक पे क्या करो, पर्टिकुलर मेथड को कॉल करो, वैसे हम लोग यहाँ पे शो करेंगे कि जब बटन पुश होगा तो क्या होना चाहिए, सम एक्शन विल बी परफॉर्म. ओके. यस यस यस, बटन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ होना चाहिए, मतलब सबमिट या एक्सेट्रा. जैसे ऑन क्लिक या फिर सबमिट, ऐसे कुछ शो होना चाहिए ना बटन के ऊपर टेक्स्ट. जैसे रजिस्टर, तो हमको पता चलेगा ये बटन किसके लिए यूज हो रहा है, रजिस्टर करने के लिए, साइन अप, लॉग इन, ऐसे कुछ टेक्स्ट वहां पे बटन के ऊपर शो होना चाहिए. ओके. नाउ सी हाउ टू डिक्लेयर द बटन. तो बटन को कैसे डिक्लेयर करोगे, बटन क्लास को पहले क्रिएट करना पड़ेगा. बटन क्लास करके हम लोग क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक क्लास बटन. बटन किसका है, कंपोनेंट क्लास का, आपका जो है कंपोनेंट क्लास का जो है मेथड है वहां पर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया पब्लिक क्लास बटन एक्सटेंड कंपोनेंट इम्प्लीमेंट एक्सेसिबल. हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बटन को कहीं से भी एक्सेस कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है एक्सेसिबल इंटरफेस को. Now the theory part and this declaration part is clear about the button. Yes. Ajay Gupta, is it clear the theory and this declaration? Yes. Okay. So now we'll see one example how to create a button. तो first हम लोगों ने import किया है java.awt.star package को.
क्योंकि हम लोग जो भी फ्रेम वगैरह को क्रिएट करेंगे या फिर जो भी बटन्स वगैरह को क्रिएट करेंगे वो सारे किसके अंदर अवेलेबल है, AWT पैकेज के अंदर अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा दैट पैकेज। सो वी आर इंपोर्टिंग दैट पैकेज, import java.awt.star, मतलब AWT पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस अवेलेबल है, AWT पैकेज के अंदर जितने भी इंटरफेसेस अवेलेबल है, वी आर इंपोर्टिंग ऑल दैट इन आवर क्लास। ठीक है, तो सारी चीजें इंपोर्ट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, स्टार सिंबल यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, स्टार सिंबल यूज किया। उसके बाद क्लास का नेम पब्लिक क्लास बटन एग्जाम्पल। उसके बाद मेन मेथड को क्रिएट किया है। ठीक है, बटन को क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर के ऊपर डिस्प्ले करोगे ना, बटन को डिस्प्ले कहाँ पे करोगे, कंटेनर होना चाहिए ना बटन को डिस्प्ले करने के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर अवेलेबल थे, लेकिन बेस्ट कंटेनर कौन सा था, आपका फ्रेम, जो क्या करता है, बॉर्डर भी प्रोवाइड करता है, मेनू बार भी प्रोवाइड करता है, टाइटल बार भी प्रोवाइड करता है। फ्रेम को क्रिएट करने के दो वे देखे थे हम लोगों ने, फर्स्ट वन था बाय एक्सटेंडिंग द फ्रेम क्लास, सेकंड वन था बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेम क्लास। एक्सटेंडिंग द फ्रेम क्लास को हम लोग क्या बोल रहे थे, इनहेरिटेंस, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने को हम लोग क्या बोल रहे थे, एसोसिएशन। ठीक है, सो नाउ वी आर क्रिएटिंग द फ्रेम विद द यूज ऑफ सेकंड ऑप्शन बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेम क्लास। तो कैसे क्रिएट किया मैंने, फ्रेम f इक्वल टू न्यू फ्रेम। ठीक है, फ्रेम क्या करता है, टाइटल बार को भी शो करता है, तो फ्रेम के ऊपर कुछ ना कुछ टाइटल डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो टाइटल मैंने यहाँ पे क्या किया है, डबल कोट के अंदर प्रोवाइड किया, बटन एग्जाम्पल। मतलब जब भी आपका फ्रेम क्रिएट होगा एट दैट टाइम वो क्या करेगा, टाइटल को शो करेगा। कौन से टाइटल को शो करेगा, फॉर एग्जाम्पल बटन एग्जाम्पल करके। तो ये आपका फ्रेम है। तो whenever this frame will build up, at that point it will show some title on the title bar of the frame. तो क्या टाइटल शो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बटन एग्जाम्पल करके। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट वन बटन। तो बटन को क्रिएट करने के लिए बटन बी इक्वल टू न्यू बटन, बटन के ऊपर भी कुछ टेक्स्ट आपका डिस्प्ले होना चाहिए फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। सो हियर वी आर डिस्प्लेइंग एज क्लिक हियर। यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्लिक हियर। Now we have to set the boundary of the button. तो कैसे सेट किया, b dot set bounds मेथड का यूज करके। set bounds method is used for creating the boundary of this button. बाउंड्री मतलब क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल ये आपका x y स्टार्टिंग पोजीशन, ये आपका जो x2 y2 आपका एंडिंग पोजीशन, मतलब बटन का बाउंड्री कितना होना चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया 50 100। तो जो फर्स्ट ये x पोजीशन है x1 y1, उसका बाउंड्री मैंने दिया है, उसका x1 y1 पोजीशन मैंने दिया है 50 100। उसके बाद जो लास्ट है आपका x2 y2, उसका मैंने दिया है 80 30। तो ये क्या करेगा, रेक्टेंगल को क्रिएट करेगा। रेक्टेंगल के अंदर दो पॉइंट्स है हमारे x1 y1 एंड x2 y2। उसके बाद बटन तो क्रिएट हो गया है, यहाँ पर बटन का ऑब्जेक्ट है बी, बटन का बाउंड्री पे सेट कर दिया है। अब उस बटन को क्या करना पड़ेगा, फ्रेम के ऊपर ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रेम के ऊपर ऐड करने के लिए फ्रेम का ऑब्जेक्ट है f डॉट एड बी। जब मैंने यहाँ पे कॉल किया f डॉट एड बी, तो वो क्या करेगा, आपके बटन को फ्रेम के ऊपर ऐड कर देगा। नाउ वी वांट टू सेट द साइज ऑफ द फ्रेम। तो फ्रेम का भी साइज सेट करना पड़ेगा, फ्रेम का भी बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कॉल किया f डॉट सेट साइज मेथड को। उसके अंदर मैंने फ्रेम का साइज दिया, फॉर एग्जांपल 400 400। स्टार्टिंग पोजीशन फ्रेम का बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, वो 0 0, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द एंडिंग पोजीशन एज 400 400। तो ये 0 0 आपका स्टार्टिंग पोजीशन है x1 y1 एंड द एंडिंग पोजीशन इज वेयर x2 y2 इज 400 400। ओके, f डॉट सेट लेआउट, कुछ बाय डिफॉल्ट लेआउट सेट करना है फ्रेम को। तो इनिशियली अभी हम लोग स्टार्टिंग देख रहे थे, अभी हम लोग कुछ लेआउट सेट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया नल। सेट लेआउट मतलब क्या रहता है, कुछ लेआउट जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। जैसे हमारे HTML के अंदर कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं, कुछ लेआउट्स ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं, वैसे यहाँ पे फ्रेम को अगर कुछ कलर वगैरह या फिर उसका बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग रहता है, फॉर एग्जांपल बटन यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ऐसे अगर आपको कुछ लेआउट वगैरह प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी टेक्स्ट आप लोग शो कर रहे हो, जो भी आपका फ्रेम के ऊपर जो भी चीजें शो करने वाले हो, वो टेबल फॉर्मेट में होना शो होना चाहिए। तो ऐसे कुछ लेआउट वगैरह देना है आपको, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेट लेआउट मेथड का यूज करते हैं। But initially we are in the starting position, that's why we are using set layout equal to null. Okay, so मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया f dot set layout ब्रैकेट में null, मतलब इनिशियली मुझे कोई भी लेआउट सेट नहीं करना है।
मेरा फ्रेम विजिबल होना चाहिए, मतलब जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पर आपका फ्रेम क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया f डॉट सेट विजिबल ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे यूज किया f डॉट सेट विजिबल फॉल्स, तो जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा तो फ्रेम आपका विजिबल नहीं होगा। तो ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, सेट विजिबल ट्रू, सेट विजिबल फॉल्स। फॉर एग्जांपल कुछ एक्शंस रहते हैं ना, बटन क्लिक होगा तभी फ्रेम शो होना चाहिए, बटन क्लिक नहीं होगा तो फ्रेम शो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ अगर आपको एक्शन परफॉर्म करना है, फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस सेट विजिबल मेथड। ओके, so this is a simple example of creating the button. Just check this example and let me know this example is clear or not. Yes, everyone. Just see this example and let me know this example is clear or not. Others? Yes, this all methods is apply on the frame except this b dot set bound method. क्योंकि इसके थ्रू हम लोग ये किसके ऊपर अप्लाई करें, बटन के ऊपर ना, क्योंकि बटन का ऑब्जेक्ट हमने यूज किया है। दैट्स व्हाई बी डॉट सेट बाउंड किसके ऊपर अप्लाई होगा, बटन के ऊपर। एफ डॉट एड, एफ का मतलब एफ किसका ऑब्जेक्ट है, फ्रेम का। तो एड मेथड किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। एड बी वाला पार्ट मुझे क्या करना है, फ्रेम के ऊपर क्या करना है, बटन को ऐड करना है। मतलब बटन कंपोनेंट को किस कहाँ पे शो करना है, फ्रेम के ऊपर शो करना है, उस कंटेनर के अंदर शो करना है। इसलिए मैंने क्या किया, एफ डॉट एड बी कॉल किया। एफ डॉट एड मतलब फ्रेम के ऊपर ऐड करो, किसको ऐड करो, बटन को ऐड करो। तो बटन का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बी, इसलिए मैंने वहां पे यूज किया है एफ डॉट एड बी कर। ओके, सेट बाउंड। ओके, सेट बाउंड मेथड किसके लिए यूज होता है, बाउंड्री सेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप लोग कोई इसको शो करते हो, या फिर जब भी आप लोग कोई इसको इंसर्ट करते हो, कोई शेप को इंसर्ट करते हो, जैसे आई शो यू, ये मेरा शेप है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड कर रही हूँ शेप का, तो स्टार्टिंग पोजीशन मुझे शो करना पड़ेगा। मेरा बाउंड्री जो है मेरे कंटेनर के ऊपर, मेरे बटन का स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगा, x1 y1, और एंडिंग पोजीशन क्या रहेगा, x2 y2। तो वही हम लोग क्या करें, यहाँ पे सेट बाउंड मेथड के थ्रू शो कर रहे हैं। तेरे मेरे बटन के अंदर जो है मेरा स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगा, x1 y1, और मेरा एंडिंग पोजीशन क्या रहेगा, x2 y2। तो मेरा बटन का जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या है, 50-100, और बटन का एंडिंग पोजीशन क्या है आपका 80-30। तो x1 y1 क्या है आपका 50-100, ये वाला पार्ट, एंड x2 y2 क्या है आपका 80-30, मतलब x2 y2 जो आपका एंडिंग पोजीशन शो कर रहा है। तो इससे के थ्रू हम लोग सेट बाउंड मेथड के थ्रू क्या सेट कर रहे हैं, आपकी बटन का बाउंड्री सेट कर रहे हैं। मतलब बटन का जो है बाउंड्री क्या होना चाहिए। नाउ इट्स क्लियर, यस yes, it's clear everyone. Okay, okay, so now should we execute this code? Yes, इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है कोड, मतलब हमारा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है और फ्रेम के ऊपर हमारा बटन कैसे क्रिएट होता है। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू सेव दिस कोड। ठीक है, सो यू विल सेव दिस फाइल। हमारी फाइल का नेम है बटन एग्जांपल। क्योंकि हम लोग जावा कोड में आ गए हैं, वी विल बी इन जावा कोडिंग फाइल। ओके, बटन एग्जांपल डॉट जावा, ऑल फाइल्स पे क्लिक किया। नाउ विल क्लिक ऑन द सेव बटन। Now we have to execute this code. That's why we opening the command prompt. First one d colon, after that cd space. Okay. Java coding. Copy this entire path.
right click and we paste. Okay, now we want to perform the set path. Set path equal to double quote C drive program files Java JDK and the bin. Okay, Control C, right click, paste. Okay, set path is done. Now we want to execute this code. The first one, Java C. The name of the file is button example dot Java. Wait a minute. Button example dot Java. Okay. Now we want to interpret the file. So Java space button example. Now check. So now check. It's creating one frame. In the frame, in title bar is showing button example, और here there is one button. Click here. ठीक है. बटन का सेट बाउंड्री मेथड के थ्रू हम लोगों ने क्या क्या है, बाउंड्री सेट किया. ये है आपका स्टार्टिंग बाउंड्री 50 एंड दी 100 एंड ये है आपका 80 30. So is it clear everyone? Yes, this code is clear with output. Okay. Okay. See, मैं यहाँ पे क्लोज करूंगी विंडो को, विंडो क्लोज ही नहीं होगा. मैं इस फ्रेम को क्लोज करूंगी ना, फ्रेम क्लोज ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके क्लोजिंग पे कुछ एक्शन दिया ही नहीं है. मैंने क्लोज करके कुछ मेथड कॉल किया ही नहीं है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करने के लिए टायर कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करना पड़ेगा. तो इंटायर कमांड प्रॉम्प्ट को जब क्लोज करूंगी तब जाके वो विंडो क्लोज होगा. ओके, उसके लिए भी है सोल्यूशन है हमारे पास. इंटायर बार बार कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करो, बार बार कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो. उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है. दैट इज द बेटर सोल्यूशन. दैट सोल्यूशन विल सी लेटर. फर्स्ट वी विल सी द स्टार्टिंग पार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट अगर क्लियर होगा, आफ्टर दैट द अदर पार्ट विल बी क्लियर. ओके, so now I think it's clear how to create the button. Yes everyone? Okay, so now we'll move to the next topic. Java AWT button with action listener. पहले हम लोगों ने सिर्फ बटन को क्रिएट किया था, ना परफॉर्मिंग सम एक्शन ऑन द बटन. तो उसके लिए क्या किया है यहाँ पर, फर्स्ट वन क्या है, इंपोर्ट जावा awt.star पैकेज को, क्योंकि मेरे सारे कंपोनेंट कहाँ पर अवेलेबल है, awt पैकेज के अंदर अवेलेबल है. उसके बाद सेकेंड वन मैंने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट java.awt.event.star पैकेज. मतलब बटन के ऊपर हम लोग जो डिफरेंट इवेंट परफॉर्म करने वाले, फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक इवेंट हो गया, फॉर एग्जांपल ऑन माउस ओवर इवेंट हो गया, तो हम लोग क्या करने वाले, बटन के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट परफॉर्म करने वाले. तो वो सारे जो इवेंट है वो सब कहाँ पर अवेलेबल है, इवेंट पैकेज के अंदर अवेलेबल है. सो वी हैव टू इंपोर्ट दैट पैकेज टू. That's why we are importing our second package, import java.awt.event.star. Okay, after that we have created one class as public class button example. Now we are using frame with the first method is by extending the frame class. इसके पहले हम लोगों ने फ्रेम को कैसे यूज किया था, by creating object of the frame class. Now we are using the frame by extending the frame class. तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया फ्रेम क्लास को, इम्प्लीमेंट किया है एक्शन लिस्नर को, बिकॉज मुझे क्या करना है, बटन के ऊपर कुछ एक्शन को परफॉर्म करना है. तो उस एक्शन को लिसन करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एक्शन लिस्नर का यूज करना पड़ेगा. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है एक्शन लिस्नर का इंटरफेस. उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. मुझे टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करना है, टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करना है. इसके लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है TF. देन बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बटन B करके. उसके बाद बटन एग्जाम्पल करके एक फंक्शन को क्रिएट किया. इन फंक्शन वी आर क्रिएटिंग टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, सिंपली वेरिएबल्स को क्रिएट किया था. अब उन वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग क्या करें, टेक्स्ट फील्ड को ऑब्जेक्ट क्रिएट करें. TF इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड. टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया. टेक्स्ट बॉक्स का बाउंड्री सेट करना है. That's why we are calling set bounds method. In button also we are using this set bounds method for allocating the boundary for that button. In the same way we are using here set bound method for allocating some boundary for our text field. So tf dot set bound, इसका बाउंड्री मैंने सेट किया x1 by 1.
यस यस, आपका बटन एग्जाम्पल इज अ कंस्ट्रक्टर. विच कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. यस, button example is the parameterized constructor. Default, okay, default constructor, because we are not providing any parameter and we are not providing any argument in this constructor, that's why we call this as the default constructor. Okay, उसके बाद हमारा टेक्स्ट फील्ड का बाउंड्री सेट करना है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सेट बाउंड्स मेथड. tf.setBounds. The starting position is 50-50 and the ending position is 150, 20. Okay, उसके बाद the second one we have to create the object of the button class. First we have created variable of the button class button b. Now we are creating object of the button class b equal to new button. उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए. तो क्या टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए? क्लिक हियर. Now we have to provide boundary for the button too. So we are using b.setBound method. Boundary हमने provide किया 50, 100 starting, 60, 30 ending. उसके बाद मुझे क्या करना है? बटन के ऊपर एक्शन लिसनर को ऐड करना है. तो b.add_action listener, उसके अंदर मैंने प्रोवाइड किया दिस किसके लिए यूज होता है? दिस कीवर्ड करंट क्लास के वेरिएबल को कॉल करने के लिए, करंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए और करंट क्लास के एक्शन को कॉल करने के लिए. तो करंट क्लास का ऑन दैट स्पॉट उस टाइम पर जो भी एक्शन परफॉर्म होगा उसको लिसन करने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पर एक्शन लिसनर को ऐड किया और यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया दिस. मतलब ऑन दैट स्पॉट जो भी करंट क्लास का एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको क्या करेगा? आपका एक्शन लिसनर लिसन करेगा. तो बटन के ऊपर एक्शन लिसनर को ऐड किया है b.add_action listener दिस करके. ठीक है, उसके बाद एड बी. फ्रेम क्लास का हम लोगों ने क्या किया है? फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया है. तो जब फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड क्या है मतलब फ्रेम क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है. तो फ्रेम क्लास के ऊपर मेथड को ऐड करने के लिए, आपके बटन को टेक्स्ट फील्ड को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? ऐड मेथड को कॉल किया है. ऐड बी सेमीकोलन ऐड एफ ऐड टीएफ. मतलब मैं क्या कर रही हूँ? आपके फ्रेम के ऊपर किसको ऐड कर रही हूँ? बटन को भी ऐड कर रही हूँ और सेकेंड वन किसको ऐड कर रही हूँ? टेक्स्ट फील्ड को भी ऐड कर रही हूँ. उसके बाद मुझे क्या करना है? सेट साइज करना है. किसका साइज सेट करना है? आपका फ्रेम का साइज सेट करना है. उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? सेट साइज मेथड को कॉल किया है. सेट साइज 400 400. फ्रेम का लेआउट सेट करना है. सेट लेआउट नल सेट विजिबल टू. वहां पे हम लोगों ने फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था. ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर देते सारी चीजें. ऑब्जेक्ट हम लोग सेट कर देते. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया? एक्सटेंड किया है ना फ्रेम क्लास को. मैंने फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया है मतलब ऑलरेडी फ्रेम क्लास अवेलेबल है. तो उसके ऊपर क्या करना है? बटन को, टेक्स्ट फील्ड को, आपके फ्रेम का साइज, आपके फ्रेम का लेआउट, उसका विजिबल सब यहाँ पे ही हम लोग को करना है. मतलब फ्रेम क्लास ऑलरेडी एक्सटेंडेड है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह यूज नहीं किया क्योंकि फ्रेम क्लास क्या है? हमारी एक्सटेंडेड है. यहाँ तक क्लियर है? यस. बटन एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर तक क्लियर है? उसके अंदर का जो भी कोड हम लोगों ने डिफाइन किया है. ओके ओके. First one, import java.awt star package. Second one, event package for handling the event. उसके बाद यहाँ पे क्लास को क्रिएट किया है. पब्लिक क्लास बटन एग्जाम्पल. एक्सटेंड किया है फ्रेम क्लास को. बटन को फ्रेम क्लास को यूज करने के दो वे थे हमारे पास. फ्रेम क्लास को यूज करने के दो वे थे. फर्स्ट वन था बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेम क्लास. सेकेंड वन था बाय एक्सटेंडिंग द फ्रेम क्लास. ऑब्जेक्ट का यूज करके कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज करना है फ्रेम को, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. उसके बाद सेकेंड वन है बाय एक्सटेंडिंग द फ्रेम क्लास. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? एक्सटेंड किया है फ्रेम क्लास को. उसके बाद इंप्लीमेंट किया है एक्शन लिसनर को क्योंकि मुझे क्या करना है? बटन के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन को परफॉर्म करना है ना. तो सेक्शन को जो मैं परफॉर्म करूंगी सेक्शन को लिसन करने के लिए क्या कॉल करना पड़ेगा? एक्शन लिसनर को कॉल करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? इम्प्लीमेंट किया है एक्शन लिसनर को. ठीक है. उसके बाद टेक्स्ट फील्ड टीएफ बटन बी करके दो वेरिएबल को क्रिएट किया हम लोगों ने. फर्स्ट टीएफ वेरिएबल कौन से टाइप का है? टेक्स्ट फील्ड टाइप का है. बी वेरिएबल कौन से टाइप का है? आपके बटन क्लास टाइप का है. ठीक है.
यस, आप बाद में भी कर सकते हो डायरेक्टली टेक्स्ट फिल टीएफ इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फिल करके भी कर सकते हो, बटन बी इक्वल टू न्यू बटन करके भी कर सकते हो। तो इफ यू डोंट वांट टू क्रिएट इन दिस स्टार्टिंग, अगर आपको यहाँ पे वेरिएबल को स्टार्टिंग में नहीं क्रिएट करना है तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर दो। तो टेक्स्ट फिल टीएफ बटन बी बटन एग्जाम्पल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है ना, तो टीएफ इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के अंदर इनिशियली कोई भी डेटा प्रिंट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्या रखा है, ब्लैक रखा है। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड का बाउंड्री सेट करना है, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड कहाँ पर डिस्प्ले होगा, फ्रेम के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो टेक्स्ट फील्ड जो फ्रेम के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है उस टेक्स्ट फील्ड का जो है बाउंड्री भी सेट करना पड़ेगा हम लोग को। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेट बाउंड मेथड को यूज किया। इसका स्टार्टिंग पोजीशन x1 y1 सेट किया है 50-50 और एंडिंग पोजीशन x2 y2 सेट किया है 150-20। उसके बाद बटन को क्रिएट किया है बी इक्वल टू न्यू बटन। बटन के ऊपर कुछ टेक्स्ट शो होना चाहिए, तो क्या टेक्स्ट शो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल क्लिक किया। उसके बाद बटन का बाउंड्री सेट किया बी डॉट सेट बाउंड मेथड के थ्रू। स्टार्टिंग पोजीशन 50-100, एंडिंग पोजीशन 60-30। क्या तक क्लियर है? बी डॉट सेट बाउंड तक क्लियर है? एवरीवन? दो सेट बाउंड क्यों है? दो सेट बाउंड क्यों है यहाँ पे? क्योंकि फर्स्ट सेट बाउंड इज यूजिंग फॉर द टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड का बाउंड्री सेट कर रहा है, क्योंकि दो हमारे कंपोनेंट है ना, हम लोग जो फ्रेम के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं वो दो कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा डिस्प्ले कर रहे हैं, आपका टेक्स्ट फील्ड। सेकेंड कंपोनेंट कौन सा डिस्प्ले कर रहे हैं, आपका बटन। तो दोनों का बाउंड्री सेट करना पड़ेगा ना हम लोग को, इसके लिए हम लोगों ने वहां पे दो सेट बाउंड मेथड का यूज किया है। ओके, one for text field and one for button. Yes. और कोई डाउट है? Yes, anyone? Okay. So यहाँ तक हम लोगों ने देखा सेट बाउंड तक, ठीक है। बटन के ऊपर बाउंड्री सेट कर दिया। बटन के ऊपर मुझे कुछ एक्शन को परफॉर्म करना है, मतलब बटन को मुझे क्लिक करना है। तो जब मैं बटन को क्लिक कर रही हूँ, मतलब बटन के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, मैं उस एक्शन को ऐड करने के लिए, उस एक्शन को लिसन करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एक्शन लिसनर का यूज करना पड़ेगा। यस, जैसे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स देखे थे, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनर देखे थे, एक्शन लिसनर देखे थे। जैसे आपका जो है ऐड एक्शन लिसनर था, उसके बाद आइटम लिसनर था, उसके बाद की लिसनर था। तो ये सब क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनर देखे थे हम लोगों ने रिगार्डिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। वैसे मुझे बटन के ऊपर क्या करना है, एक्शन को परफॉर्म करना है। जब मैं बटन के ऊपर एक्शन को परफॉर्म करूँ तो सेक्शन को लिसन करने के लिए तो एक्शन लिसनर को तो ऐड करना पड़ेगा ना बटन के ऊपर। जब मैंने बटन के ऊपर एक्शन लिसनर को ऐड नहीं किया तो बटन के ऊपर आप लोग कोई भी एक्शन को परफॉर्म करोगे, कुछ परफॉर्म होगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि आपने एक्शन लिसनर को ऐड ही नहीं किया। तो बटन के ऊपर जो भी एक्शन आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, सेक्शन को लिसन करने के लिए वी आर एडिंग दिस ऐड एक्शन लिसनर। तो बी डॉट ऐड एक्शन लिसनर यहाँ पे मैंने कॉल किया है दिस मतलब करंट क्लास का एक मेथड कॉल होगा। कौन सा मेथड कॉल होगा, दैट आई विल टेल यू लेटर। ओके, फर्स्ट सिर्फ इनिशियली इतना याद रखो, मैंने क्या किया है, बटन के ऊपर एक्शन लिस्टर को ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, क्योंकि मुझे क्या करना है, बटन के ऊपर एक्शंस को परफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गया, बटन क्रिएट हो गया, बटन के ऊपर लिस्टर को भी ऐड कर दिया। अब ये सारे कंपोनेंट कहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, फ्रेम के ऊपर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रेम आपका कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हम लोग ये सारे कंपोनेंट को डिस्प्ले करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट कहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, कंपोनेंट के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल किया है ऐड बी। इसके पहले हमने यूज किया था एफ डॉट एड बी, क्योंकि वहां पे मैंने फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने फ्रेम को कैसे यूज किया है, बाय दिस सेकेंड मेथड बाय एक्सटेंडिंग द फ्रेम क्लास। जब फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया है, मतलब इस क्लास के अंदर ऑलरेडी फ्रेम अवेलेबल है, उस फ्रेम के ऊपर मुझे चीजों को ऐड करना है सिंपली।
इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉल किया ऐड बी। ऐड बी में वो क्या करेगा, फ्रेम के ऊपर बटन को ऐड करेगा। फर्स्ट कंपोनेंट ऐड हो गया ऑन दी बटन। सेकेंड वन मैंने कॉल किया ऐड टीएफ। टीएफ क्या करेगा, टेक्स्ट फील्ड को ऐड करेगा ऑन दी ऑन योर फ्रेम। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट ऐड हो गए, बटन और दी टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, उसके बाद मुझे फ्रेम का साइज सेट करना है। तो फ्रेम का साइज कैसे सेट करते हैं, क्योंकि फ्रेम भी तो एक क्या है, आपका कंटेनर है ना, तो फ्रेम का भी साइज सेट करना पड़ेगा। तो फ्रेम का साइज सेट करने के लिए सेट साइज मेथड को कॉल किया 400 400। फ्रेम को कुछ लेआउट सेट करना है, तो इनिशियली मुझे कोई भी लेआउट सेट नहीं करना, क्योंकि हम लोग इनिशियल पार्ट के अंदर है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं फ्रेम वगैरह कैसे यूज होगा, फ्रेम के ऊपर कंपोनेंट कैसे डिस्प्ले होंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे सेट लेआउट में यूज किया है नल। इनिशियली मुझे कोई भी लेआउट यूज नहीं करना है फॉर द फ्रेम। सेट विजिबल ट्रू, जैसे आपका कोड रन होगा वैसे ही फ्रेम विजिबल होना चाहिए, यस। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया सेट विजिबल ट्रू। ट्रू क्या शो करेगा, जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या करो, फ्रेम को विजिबल। Now let me know the button example default constructor is clear or not. Everyone. Okay. Okay. अब उसके बाद बटन के ऊपर मैंने ऐड एक्शन लिसनर को ऐड किया था। वो क्या कर रहा था, लिसन कर रहा था एक्शन को। जस्ट वेट अ मिनट। उसके बाद मैंने बटन के ऊपर क्या किया था, लिसनर को ऐड किया था। जो क्या कर रहा था, बटन के ऊपर जो भी एक्शन होगा उसको लिसन कर रहा था। जब बटन के ऊपर हमने लिसनर को ऐड किया था, तो ब्रैकेट पे हम लोगों ने कॉल किया था दिस। दिस क्या करता है, करंट एक्शन को कॉल करने के लिए। जो क्या करेगा, करंट एक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब जब भी उसने बटन के रिलेटेड कुछ एक्शन को लिसन किया, तो करंट मेथड को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, दिस। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, बटन के ऊपर जब भी एक्शन परफॉर्म होगा, उस बटन के लिए आपने जो भी एक्शन सेट किया रहेगा, जो भी एक्शन वहाँ पे, जो भी मेथड आपने सेट किया रहेगा, जो भी एक्शन आपने वहाँ पे परफॉर्म किया रहेगा, उसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दिस मेथड का यूज करते हैं। तो करंट क्लास के अंदर उसने एक्शन लिसनर को क्या कर दिया, एक्शन को लिसन कर दिया। लिसन करने के बाद उस बटन के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए दिस मतलब एक एक्शन परफॉर्म मेथड को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो यहाँ पे बटन के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए वी आर क्रिएटिंग पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म मेथड। ये एक्शन परफॉर्म्ड मेथड बाय डिफॉल्ट फिक्स है। इस मेथड का नेम यू कैन नॉट चेंज इट। एक्शन परफॉर्म्ड मेथड बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है। ये एक्शन परफॉर्म मेथड कब कॉल होगा, जब भी आपके बटन के ऊपर कोई भी एक्शन लिसन होगा उस टाइप पर। इसलिए मैंने दिस कीवर्ड का यूज किया करंट क्लास के एक्शन परफॉर्म मेथड को कॉल करने के लिए। तो दिस क्या करता है, करंट क्लास के रिगार्डिंग उस बटन के लिए जो भी एक्शन परफॉर्म मेथड सेट रहेगा, उस एक्शन परफॉर्म मेथड को कॉल करेगा। तो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, एक एक्शन को परफॉर्म करना है। एक्शन को परफॉर्म करना है मतलब एक इवेंट को परफॉर्म करना है। तो एक इवेंट को परफॉर्म करने के लिए एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो कर्ली ब्रेस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में एक्शन मैंने सेट किया tf डॉट सेट टेक्स्ट। tf है आपका टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के ऊपर एक टेक्स्ट को सेट करो। कौन से टेक्स्ट को सेट करो, वेलकम टू जावा पॉइंट। मतलब जैसे ही बटन क्लिक होगा तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक टेक्स्ट सेट होगा, कौन सा, वेलकम टू जावा पॉइंट। एक्शन परफॉर्म्ड क्लियर है, एक बार अच्छे से देखो। बी डॉट एड एक्शन लिसनर, बटन के ऊपर एक्शन जब लिसन होगा, कोई भी एक्शन लिसन होगा उस टाइम पर दिस मतलब करंट क्लास के अंदर एक एक्शन परफॉर्म मेथड रहेगा, उसको कॉल करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा जब भी एक्शन को लिसन करना होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस मेथड का ही यूज करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। वो क्या करता है, इस बटन के रिलेटेड जो भी एक्शन राइट किया रहेगा उस एक्शन को कॉल करता है। उसके बाद पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, एक एक्शन को परफॉर्म करना है। एक्शन को परफॉर्म करना है मतलब एक इवेंट को परफॉर्म करना है। इसके लिए हम लोगों ने एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ई। ठीक है, एक एक्शन इवेंट, एक एक्शन परफॉर्म होगा, एक इवेंट परफॉर्म हो गया।
कौन सा इवेंट परफॉर्म होगा, वो इवेंट हम लोग कहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, कर्ली ब्रेस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। कौन सा एक्शन इवेंट परफॉर्म करना है, तो टेक्स्ट फील्ड को एक सेट टेक्स्ट करना है, कौन सा, वेलकम टू जावा पॉइंट। तो जैसे ही बटन क्लिक होगा तो टेक्स्ट फील्ड के ऊपर एक टेक्स्ट जो है सेट होना चाहिए, कौन सा, वेलकम टू जावा पॉइंट। उसके बाद मेन मेथड के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, न्यू बटन एग्जांपल। तो जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो ये आपका पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। So just check this code and let me know the code is clear or not. I'll take the test, हाँ, मैं टेस्ट लेने वाली हूँ आपका, so don't leave the meeting. 12:58 हो गया है, but first we'll take the test, after that we'll stop the meeting. So just first let me know the code is clear or not. पहले हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। पहले मुझे बताओ ये कोड क्लियर है या नहीं। लास्ट में न्यू बटन एग्जांपल, जब आप लोग कोई क्लास को कॉल करते हो तो कैसे कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो, बटन एग्जांपल बी इक्वल टू न्यू बटन एग्जांपल ना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यहाँ पे भी क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है ना, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो वही मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हूँ न्यू बटन एग्जांपल करके। तो जब मैंने यहाँ पे न्यू बटन एग्जांपल किया, मतलब बाय डिफॉल्ट में क्या कर रही हूँ, बटन क्लास के जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हूँ, उसका ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। It's clear? Yes. Everyone reply the code is clear or not? Yes, everyone reply. Others? So now we'll execute this code. इस कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हमारा कोड जो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस। मैंने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बटन एग्जांपल ही है फाइल का नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने उसके अंदर ही कॉपी पेस्ट किया है। So now we'll open, we have to open the command prompt. So d:/cd space Control C, right click, paste. Now we want to perform the set space path. So set space path equal to C drive, program files, Java, JDK, bin. So Control C, right click, paste. Okay. So now we have to compile this file, Java C button example.java. Okay, file is compiled. Now we want to interpret the file. See, create हो गया। फ्रेम का देखो कोई भी टाइटल बार हमने सेट नहीं किया, दैट्स व्हाई यहाँ पे टाइटल में क्या शो कर रहा है, ब्लैंक। क्लिक हियर, मैंने ऑप्शन क्या परफॉर्म किया था, जैसे बटन क्लिक होगा टेक्स्ट फील्ड में क्या शो होना चाहिए, वेलकम टू जावा पॉइंट। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो टेक्स्ट फील्ड में क्या शो हो रहा है, वेलकम टू जावा पॉइंट शो हो रहा है। सो लेट मी नो द आउटपुट इज क्लियर। Yes, everyone. Others, the output is clear. Okay. So यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल AWT कंपोनेंट देखा और एक ही कंपोनेंट देखा, वो आपका बटन है। तो बटन को क्रिएट कैसे करना है और बटन के ऊपर एक सिंपल एक्शन कैसे परफॉर्म करना है, दैट वी हैव सीन नाउ। इसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, मे बी वो कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। So just wait a minute, I'll send you the test link. Okay. ये नोट्स मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया, सिर्फ प्रैक्टिकल का डॉक मुझे सेंड करना है, ठीक है। सो दैट डॉक आई विल सेंड यू टुडे ओनली। आज मैं आपको वो डॉक सेंड कर देती हूँ। उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं थ्योरी के अंदर ही, और कुछ प्रैक्टिकल्स रिमेनिंग है। तो जो रिमेनिंग रहेंगे दैट
that practical will perform. बाकी सबका कितना हुआ यूनिट 3? यस